Dear students, good morning. Yes, yesterday you had seen present indefinite tense. We had recognized it, we introduced it, positive, negative, interrogative, negative, and WH. Okay, it was finished. Now, in Hindi, you understood very well, but it is not completed. How can you make it when there are some questions arise? Yeah, he always there is come. What will be the correct answer? My dear students, always take that when there is some sentences given in examination, some hints are also be there. Always is the word which always comes in present indefinite tense. So it is present indefinite, you can understand it. Always जहां आपने देखा वैसे ही आपने समझ लिया कि always का प्रयोग हम present indefinite tense में करते हैं. अब आप क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट क्या है? ही. अच्छा, कल आपने क्या देखा था? ही के साथ एस और यस लगाते या नहीं वर्ब में? लगाते हैं. आपने देखा था ही, सी, इट, वन नेम के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. तो हमने यहां पे भर दिया कम्स. अभी आपका हो गया सही और आपको मिल गए मार्क. ओके, तो आप सोचो और भी तो बहुत सारे शब्द होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होंगे. यस, दिस इज कीवर्ड्स. इसको क्या कहते हैं? कीवर्ड्स. मैं आपको कुछ आपके स्टैंडर्ड के अनुसार कीवर्ड्स बताऊंगा. ये आपको याद रखने हैं हमेशा, चुटकियों में याद हो सकते हैं ये. यस, द फर्स्ट इज ऑलवेज, जिसका यूज आपने अभी किया. The second is never. Third is sometimes. Fourth is often. Fifth is every day. Next is daily. Next is usually. Next is generally. Next is frequently. Okay, etc. This is the first keyword. Now second, when we use habitual truth, in present. Next, geographical and scientific truth. Truth in present, or these are always be present. Okay, no confusion. So whenever there are such type of sentence, words are recognized, it is also called golden rules. इसको हम golden rules के नाम से भी जानते हैं. अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया तो मैं जब एक्सरसाइज दूंगा तो मैं आपको गोल्डन वर्ड्स और भेजूंगा, जिसके माध्यम से आप हमेशा सटीक शब्द का चयन कर सकते हैं और भर सकते हैं. राइट, देयर आर सम एग्जाम्पल्स. The first is 2 and 2 dash 4.
You have to fill the verb. In bracket there is make. Next, time and tide for none. Wait. Slow and STD the race. Win. Next, she never dash to her school. Go. The sun in the east rise. Stars in the sky twinkle. Okay, you can do now. आप इसको करके देखो. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं. The next sentence is, my friends dash me daily. Okay, do it. Completed? Check. 2 and 2 make 4. Learn it. Time and tide waits for none. Slow and steady wins the race. You 3 sentences you must learn. Yeah, now you can see there is never. Never is present indefinite. So she always takes s or yes because it is singular. she के साथ हम s और yes का यूज करेंगे तो go से क्या होगा? goes. The sun rises in the east. Sun is singular number and it is the habit of the sun ना. सूर्य की क्या हैबिट है? वो हमेशा पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है. The sun rises in the east and the sun sets in the west. है ना? Sets singular number. Okay? Rises. Stars, it is plural. Stars twinkle in the sky. Yes, twinkle. My friends, there is plural, friends. If there is friend, helps, singular number, third person. But if there is friends, use help only. Because daily is the keyword. Okay? In this way, you can keep more and more exercises. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करिए, आपको बहुत आनंद आएगा. अगर आप ये सोच कर करेंगे कि इट इज़ एन एंटरटेनमेंट, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वर्क, आपको बहुत मजा आएगा. अगर आप ये सोचेंगे कि अरे सर ने कहा है तो इसको करना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह नहीं सीख सकते. क्योंकि सारा जो पावर है वो आपके मस्तिष्क में निहित है. आप अगर दिल से लगन से कुछ भी कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा. है ना? कल अपन ने डिस्कस किया था ना, डिजायर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन. ओके, सो डू इट. नाउ वी विल सी द अदर वर्क. ओके, may I rabbit? Oh.
पूजा, एक बार चेक तो करो सही चल रहा है। My dear students, it was the simple recognition of present indefinite tense. In this tense, you can learn more and more pattern to speak English. The first pattern. Pattern number 1. वह खेलता रहता है। ओके, वी ऑफन स्पीक, वह खेलता रहता है, वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस गो प्लस ऑन प्लस विंग। सब्जेक्ट यू कैन यूज कीप और गो, आप या तो कीप का यूज कर सकते हो या गो का यूज कर सकते हो। ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ पे क्या है? प्ले, प्लेइंग। ओके, वह खेलता रहता है, ही कीप्स, बिकॉज ही ऑलवेज टेक्स एस और यस, अभी आपने सीखा था। ही कीप्स ऑन प्लेइंग। मेरी माँ रसोई में काम करती रहती है। माई मदर कीप्स ऑन वर्किंग इन द किचन। मेरा छोटा भाई लिखता रहता है। माई यंगर ब्रदर कीप्स ऑन राइटिंग। ओके, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू मेक 20 sentences like this. ओके, विल यू? ओके, आपको सीखना है तो आपको करना होगा, और इसको एंटरटेन करके करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सेकेंड पैटर्न, रूल नंबर 2, पैटर्न नंबर 2, वह खेलता ही रहता है। दिस इज द एम्फेटिक सेंटेंस। यहां पे ही नहीं है, यहां पे ही है, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है ना। सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट V1। ओके, सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट V1। वह खेलता ही रहता है। ही ऑलवेज टेक्स डज स्टडी यू हैड लर्न, आपने कल ही सीखा था। ही सी इट, वन नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे और नेम्स के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही डज नथिंग बट प्ले। मेरा छोटा भाई खेलता ही रहता है। माई यंगर ब्रदर डज नथिंग बट प्ले। मेरी माँ काम करती ही रहती है। माई मदर डज नथिंग बट वर्क। ओके, सो यू शुड लर्न इट वेल। ओके, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज मैडम। इधर कर लो। The third pattern, pattern number 3, वह यहां आता तो है। ओके, इट इज emphatic sentence real, तो है, it is also emphatic sentence। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1। ओके, वह यहाँ आता तो है। ही डज, ही ऑलवेज टेक्स डज, ही डज कम हियर। वे लोग खेलते तो हैं। दे डू प्ले, राइट।
if you make 20, 20 and 20, there will be 60 sentences and you will be frequent to speak very well to these sentences. Two more pattern I want to teach you today so that you can learn 5 pattern today. Right? Okay. May I rub it now? Check it. I am going to rub it after 30 seconds. My dear students, आप इसको सीखें, इसको शेयर भी करें. आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को, जिनको भी भेजना हो इसको भेजें ताकि वो अच्छी तरह इसको सीख सकें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. आप अपने फैमिली से शेयर करें इसको. आप सबको बिठा के भी आप ऐसे सेंटेंस खुद रिपीट करें, रिवाइज करें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो. इसलिए आप मन में बोलो आई कैन, आई कैन, आई कैन, यू कैन. ओके, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. My dear students, my dear friends, I am going to teach you 2 more things that is very simple and you use it daily 100 times. आप इसको रोज 100 बार बोलते हो. The 4th pattern, pattern number 4. मुझे पढ़ना है. या वी स्पीक इट. मुझे पढ़ना है, उसे खेलना है. राइट ना? सब्जेक्ट हैज और हैव +2 + V1 अदर्स. मुझे पढ़ना है. आई हैव टू रीड. मुझे अंग्रेजी पढ़ना है. आई हैव टू रीड इंग्लिश. मुझे अपने मित्रों के साथ अंग्रेजी पढ़ना है. आई हैव टू रीड इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स. मुझे अपने मित्रों के साथ आज अंग्रेजी पढ़ना है. आई हैव टू रीड इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स टुडे. ओके, सो उसे खेलना है. ही हैज़ टू प्ले. उसे क्रिकेट खेलना है. ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट. उसे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलना है. ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. Right? And the next and last pattern I want to teach you today, pattern number 5. मुझे पढ़ने दो. You speak daily ना? अरे भैया डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो. दीदी मुझे खेलने दो, है ना? मुझे सोने दो. Like such type of sentence you speak daily more than 100 times. उसे सोने दो, डोंट डिस्टर्ब. या ही स्पीक डेली ना. नाउ द सेंटेंस पैटर्न इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1. ओके, आप हमेशा याद रखें लेट ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट, नेवर सब्जेक्ट. आगे हम आपको लेट पैटर्न सिखाएंगे बड़े एक्टिव पैसिव में, तो आप सीखेंगे कि किस तरह ये हमेशा ऑब्जेक्ट को ही लेता है. मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड. उसे सोने दो, लेट हिम और हर स्लीप. मेरे छोटे भाई को सीखने दो, लेट माई यंगर ब्रदर लर्न. माई डियर स्टूडेंट्स, 20-20. It means today you have to make 100 sentences and it is very easy for you because you are free totally 24 hours. You can share it and you can tell it to your friends, your relatives, so that they also can learn it well and get benefit. They can speak good English. Okay, my dear friends, have a good day. See you tomorrow. Jai Hind.